हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस में करेंगे उसमें तीसरा चैप्टर करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे रिलेशन बिटवीन टू द सोसाइटी, नेशंस, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसका अर्थ यही है कि हम जो जानेंगे अंतर देखेंगे कि जो है समाज में, राष्ट्र में और राज्य और गवर्नमेंट क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो सीबीएसई के में पढ़ते हो, चाहे वो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनमें जो है अगर डिफरेंस रहा सोसाइटी, नेशन, स्टेट और गवर्नमेंट में, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the state and government. There is the most important topic here, the state and government. The government as now is one element of the state. The government here, a element of the state, it is an agency through which is the law and made and enforced, and those who is the violate the law and the punished. It is a visible of manifestation of the state authorities. It consists of all the person, institution and agencies through which the will of the state is expressed and carried out. Thought, the state is a speak through their government, it is a proper to be differentiated between two. The first here, the state has authorities inherent in itself, whereas the government has a no inherence and power. The government get its structure, authorities and power from to the constitutions of the is a state. And here's one fact, the constitution began to collection of the basic rule in the fundamental law according to which the government of a state is organized. There is a most important state and government. The government is a state as the element. There is the most important for the government element of the state. And second here, the state is a larger entity that include all the citizens. The government is relatively a smaller unit that include only those who are the employed to be perform its functions. We are all the citizens of the state. We are all the citizens of state, but we are all not be functionaries of the government. That is the most important. And Gannett written here, the government is the assembly organ agency of state, but it is no more than the state itself than to the board of direction of the corporation is its the corporation. And there is the next is here, the idea of the state is a quite abstract. The government is the concretization of the idea of the state. We see the government, not the state. The next year, the state is a near a permanent institution. It is so because it does not be die unless it is attacked and made a part of the other state. The government is a temporary. It is so because it may be changed. Today as rulers, as may not be a tomorrow is a rules. To put it is the other way, their state may be the same everywhere, and whereas their government may be varies from one state to another. India and the United States and Great Britain is the France, for the example, all are all the state. This is the most important. United States, India, and Great Britain, France, there is example are all the state. But the government which work is the state may not be the same types. The government is a different types, is a different country. In India and the Great Britain, there is a parliamentary government, whereas the United States of America, where is a presidential government. There is a different government is the
Here is one fact: is a parliamentary government is a system of government where is the legislative organs and there is a government is closely related to the executive organs. There is a cabinet is taken from to the legislatures and the responsible to be it is especially to the lower house of the legislatures. And the next here, the presidential government is a system of government where the legislative organs of the government is independent of executive organ. The executives exist of separately from the legislatives and not be responsible to it. There is a presidential government in fact here. The next here, the surveillance power lay with their state. It is a state which is the surveillance. There is a government only exercises power. The government is a power are regulated and the derivatives their state power are real and original. The oppositions to their state is different from the oppositions of the government. We are citizens the government. We never to condemn the state. The criticism of the state is a revolt. The criticism of the government is not to be rebellions. We would be never to the hair form to Indian that is a Indian is a bad. But we should be usually here. That is a policy of the Indians government headed by their political party. Magnitudes of the political party are bad. It is a crime to be condemned on a state. It is a dirty is a fact. It is a right to be as a criticize one as a government. The next year. The government is a value on the element of the state is according it is one part of the state, it is a part of the walls of the state. As a part of government is not to be greater than to the wall. When we talk of the state, we talk of the population, the defined a territory, the government as a sovereignty. But when to the talk of the government, we talk of the one part, one element of the state. There is the most important here. The we are talking to state the talk of population that define the territory, the government, and here is the sovereignties. And but there we talk of the government, we are talk of one part of the element of the state. There is the most important line here. The state is territories are well defined. It is remaining unchanged. It is the boundaries remain where they are. The government as a territory is never to is a permanent. Muhammad Tughlaq had a change his the capital to place or called to the Dawlatabad. Dawlatabad here the many government has a change. There is a capital to the London during the World War II and fearing there is a Germans attack. यदि बात यहाँ पर हम करें राज्य और सरकार की तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है राज्य और सरकार। देखिए राज्य और सरकार जो है जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य का एक घटक के रूप में देखा जा सकता है, यानी सरकार जो होता है राज्य का एक एलिमेंट होता है और यह वह संस्था है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और लागू भी आम इंसानों पर किए जाते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जो है सदैव दंड मिलती है। ये तो आपने समाज में भी देखा होगा, अपनी राजनीति में भी देखा होगा। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसमें राज्य के सभी लोग जो संगठित और संस्थाएं शामिल होती हैं जिनके द्वारा राज्य की इच्छा व्यक्त की जाती है और इसकी प्रतिपादन भी होती है। यद्यपि राज्य अपनी सरकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। देखिए जब तक आप राज्य और सरकार में अंतर का अगर नहीं समझ पाओगे तब तक ये चैप्टर जो रहेगा अधूरा रहेगा। इतना तो आपको पता होगा ही कि राज्य जो होती है जिसमें सरकार बनाई जाती है, ठीक है, यानी राज्य होती तभी सरकार बनती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात यहाँ पर करें हम पहली पॉइंट को तो यही साफ शब्दों में यहाँ आप देख सकते हो कि राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार होता है, यानी राज्य के पास सारे जो स्वाभाविक अधिकार होता ही है, जब सरकार के पास नहीं होता है। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकार शक्ति और संविधान द्वारा प्राप्त होती है, यानी देखा जाए तो सरकार तब बनती है जब लोगों की अनुमति होती, तब जाके उसको अधिकार शक्ति और संविधान द्वारा प्राप्त सारे पावर इसको दी जाती है, नहीं तो वो एक आम ही व्यक्ति माना जाता है। कहते हैं अगर हम एक फैक्ट देखें तो इसमें यही बात आता है सामने कि मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी भी राज्य की सरकार सुगठित होती है, यानी मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है, ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल्स रूल, यानी मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार को सुगठित यानी बनाई जाती है। देखा जाए तो कहते हैं राज्य एक बड़ी इकाई के रूप में है जिसमें इसकी सभी नागरिक शामिल होते हैं। सरकार एक छोटी सी इकाई है जिसमें सरकार की सुचारू रूप से चलाने वाले कुछ ही कर्मचारी होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक हैं तो होते ही हैं परंतु सरकार के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये तो बहुत ही आम बात है कि देखिए हम जो है राज्य के नागरिक हो सकते हैं बट सरकार के जो है सदस्य नहीं हो सकते। सरकार के सदस्य जो होता है गिना चुना व्यक्ति ही होता है जो या तो इलेक्शन के रूप में जाता है या जो
मंत्री बना है उसके आश्रित पे होता है। कहते हैं अगर हम गवर्नर की बात देखें तो गवर्नर ने साफ शब्दों में इसको जो है बात बताने की कोशिश किया था कि सरकार राज्य का आवश्यक अंग है परंतु राज्य से बड़ी नहीं है। देखिए सरकार जो है राज्य का केवल अंग है बट राज्य से बड़ा नहीं है, क्योंकि कहते हैं सरकार तो बदलती रहती है, सरकार तो आती और जाती रहती है लेकिन राज्य तो स्थिर रहती है। वैसे जैसे किसी नगर का निर्देशक समूह के स्वयं जो है निगम नहीं होता है। तो ये बात साफ आप समझ सकती हो। अगर बात करें राज्य जो है अमूर्त है, राज्य का कोई मूर्त नहीं है, वो अमूर्त है। सरकार इसका जो है परिकल्पना और की जो है मूर्त रूप में, सरकार एक रूप होता है जो सारे रूल रेगुलेशन को बनाता है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को कभी देख नहीं सकते। ये तो जहाँ पर लोग होते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है और राज्य जब बन जाती है तो उसमें सरकार भी बनाना पड़ जाता है। अगर बात करें अगले पॉइंट का तो यही साफ शब्दों में आ रहा है हमारे समक्ष, राज्य लगभग एक स्थायी संस्था है। यानी राज्य जो होता है एक जो है स्थायी संस्था के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा न बना लिया जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, स्थायी रूप में होता है जब तक कोई दूसरा बंदा जो है इसको अपने राज्य में सम्मिलित न कर दिया जाए। सरकार अस्थायी होती है क्योंकि वह बदलती रहती है, आती है और जाती रहती है। आज जो शासक है वही कल शासक नहीं भी हो सकता है। अन्य प्रकार से देखने पर राज्य सभी जगह पर जैसा ही हो सकता है, यानी राज्य जो का सब जगह एक जैसा ही होता है, परंतु सरकार एक रूप से दूसरे राज्य के बदल भी सकता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस राज्य हैं। ये तो आपको भी पता है कि भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वहाँ राज्य है। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में जहाँ संसदीय सरकार है वहीं अमेरिका में अगर आप देखोगे तो अध्यक्षीय सरकार है। यानी देखा जाए तो अगर भारत में देखें हम तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाया जाता है लेकिन अमेरिका में जो है प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट पाया जाता है, यानी वो प्रेसिडेंट वहाँ पर राज्य करता है। तो ये बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है जिसको आपको समझ के जो है नोट डाउन भी करना चाहिए। यहाँ पर एक फैक्ट आया है जिसके बारे में जैसे कि हमने अभी बात किया है कि जो इंडिया के बारे में जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और जो अमेरिका में है वहाँ प्रेसिडेंटली होती है, तो उसी विषय में यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। कहते हैं संसदीय सरकार वो सरकार है, संसदीय जो है भारत में पाई जाती है, यानी संसदीय सरकार वो सरकार है जहाँ सरकार जो विधायी अंग इसकी कार्यकारिणी अंग से घनिष्ठ से जुड़े होते हैं। जैसे भारत में सारे कार्यपालिका के जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार से जुड़ी हुई होती है और मंत्रिमंडल इसी विधायक से लिया जाता है, यानी मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो गठन होती है उन्हीं मंत्रियों में से जो है चुना जाता है, जैसे इंडिया में होता है, जिसके प्रति वह उत्तरदायी होता है। मुख्य संसद निचले सदन के प्रति होता है, यानी संसद के निचले सदन के लिए होता है। लेकिन हम देखिए अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ अध्यक्षीय सरकार होता है, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट्री यहाँ पर जो है प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री यहाँ पर नहीं होती है। संसदीय सरकार अमेरिका में नहीं होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंटली सरकार होता है, यानी जो है राष्ट्रपति ही शासन पूरा करता है। जहाँ सरकार का जो है कार्यकारिणी अंग विधायक अंग से स्वतंत्र होते हैं। कार्यकारिणी का क्योंकि ये इसलिए स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये सीनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांग्रेस होते हैं वहाँ पर। अमेरिका की राजनीति अगर आप जानोगे तो वहाँ पर जो है कांग्रेस जो है विधान पालिकाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, विधान पालिका के अंतर्गत जो है आपको विधायिक सदन मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सीनेट मिलेगा। तो ये सारे प्रणाली इसी के अंतर्गत होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र होता है सभी फैसले लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो कहते हैं अध्यक्षीय सरकार का जो है गठन किया गया है। कार्यकारिणी का अलग अस्तित्व होता है और यह मंत्रिमंडल के प्रति सही उत्तरदायी नहीं होता है। यानी अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र का ही होते हैं, लेकिन भारत में नाम मात्र का नहीं होते हैं। भारत में उनका बहुत ही दबदबा होता है, लेकिन अमेरिका में कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी सदस्य बन सकता है और उनकी अमेरिका में जो इनके कार्यकाल होते हैं सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं और बीच में चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। कहते हैं भारत में जो निचला सदन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वही अमेरिका में हम देखें तो निचला सदन जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। और भारत में देखें अगर ऊपरी सदन की बात करें तो वो काफ़ी कहते हैं बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो कहते हैं ऊपरी सदन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहते हैं अमेरिका और भारत का जो है बहुत काफ़ी अलग है, लेकिन इंडिया की देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है ब्रिटेन से काफ़ी मिलता जुलता है और सेम ही है बिल्कुल ही देखा जाए तो ये आपको समझ होना चाहिए। कहते हैं सप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है, यानी सरकार केवल शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य के पास सारी शक्तियाँ होती है और जिसकी सरकार बनती है सारी शक्तियाँ उसके पास चला जाता है और फिर उन शक्तियों का वो प्रयोग करके लोगों की भलाई के लिए सदैव ही अग्रसर होता है। राज्य की शक्तियाँ वास्तविक और मौलिक होती है, यानी राज्य आपको पता है कि राज्य की शक्ति जो होती है मौलिक होती है और वास्तविक होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो सरकार की कोई शक्तियाँ नहीं होती, सरकार की शक्तियाँ तब प्राप्त होती है जब वो
सत्ता में आती है, सत्ता से पहले उसको कोई भी पावर नहीं दिया जाता है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य का जो है विरोध करना सरकार के विरोध करने से अलग है। हम सरकार की आलोचना करते हैं, ना कि राज्य की। ठीक है, हम सरकार को गलत बोल सकते हैं, राज्य को हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। राज्य तो एक अस्थाई है, बट सरकार अस्थाई है। जैसा सरकार आप बनाओगे वैसे ही आपके साथ वो दुराचार भी कर सकते हैं या अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। राज्य का आलोचना विद्रोह है। ठीक है, राज्य का अगर आलोचना आप करते हो तो ये विद्रोह माना जाएगा, लेकिन सरकार की आलोचना विद्रोह नहीं मानी जाती। कि सरकार तो कहते हैं, आज के समय में देखा जाए तो सरकार आज सार्वजनिक कार्य नहीं करते हैं, सदैव अपनी ही लाभ के लिए व्यक्तिगत कार्य करने पर लगे होते हैं, तो आप उसका विद्रोह भी कर सकते हो। हम किसी भारतीय से कभी नहीं सुनते हैं कि भारत खराब है, बल्कि अक्सर ये सुना जाता है किसी राजनीतिक दल का गठन की जो है अगुवाई वाली सरकार की नीतियाँ सदैव खराब होती है। तो ये तो आपको पता है कि भारत कभी खराब नहीं है। भारत तो कहते हैं ना, भारत चंद नेताओं की वजह से भारत को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत खराब नहीं है। यहाँ के जो मंत्री लोग सब होते हैं वो खराब होते हैं, जो सरकार चला रहे होते हैं वो खराब होते हैं। वो आज के समय में जो है व्यक्तिगत फैसला लेने लग गए हैं। कहते हैं सरकार जब कभी बनती है तो सरकार को कभी भी व्यक्तिगत फैसला नहीं लेना चाहिए, सदैव ही सार्वजनिक फैसला होना चाहिए। और सरकार कभी व्यक्तिगत नहीं होती है, सार्वजनिक होती है। तो ये राज्य की निंदा एक अपराध होती है, क्योंकि राज्य को हम कभी निंदा नहीं कर सकते। कहते हैं यह कर्तव्य है, बल्कि अधिकार भी। कोई अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है। अगर कोई सरकार है जिसको हमने स्वयं ही बनाया है तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसको सरकार की जो है गिरा भी सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष सरकार राज्य का केवल एक घटक है, यानी सरकार जो है राज्य का एकमात्र एलिमेंट है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण राज्य का एक भाग है और भाग होने के कारण राज्य बड़ी ही नहीं हो सकती है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो ये हम जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात भी करते हैं, परंतु जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम एक अंग की बात करते हैं। राज्य का एकमात्र घटक होती है, यानी वो राज्य का सिर्फ एक नाम मात्र का ही होता है जिसको सिर्फ चलाना होता है, और इसका भी जो समय अवधि निश्चित होती है। ठीक है, वह जनता पर भी आश्रित होता है और जनता जब चाहे जो है कुर्सी से गिरा भी सकती है। तो ये भारत में ये प्रावधान है, क्योंकि हमारा देश जो है कहते हैं लोकतंत्र है और लोगों का यहाँ पर राज चलता है। कहते राज्य क्षेत्र सदैव जो निश्चित होता है, यह बदलता नहीं है। सरकार क्षेत्र कभी भी स्थायी नहीं होती और सदैव ही वो बदलता रहता है। लेकिन बात हम करें इतिहास की तो कहते मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। अब बहुत सी सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के आक्रमण के डर के कारण अपनी जो राजधानी लंदन बना ली थी। The next topic is state and the nation. The state and the nation here. By the nation, as you know, we mean to the historically constituted stable community of people formed on the basis of a common language, territory, economics, life, and as a physiologically here, there is a make to the manifested in a common culture. Nation is a blastochellis say, means the scientist here the blastochellis say, a union of the masses as a man bound together, especially by the language and custom into the common civilization, which is to give them a sense of unity. A nation is a culturally homogeneous social group. Here is a one fact: the nation cannot. There is a concept of people who are the conscious of their historically and cultural background, and who is a wish to the prefectures. There is a background is the politically within the framework of a state. The state is we now is a people is organized for the law within a defined territory. It is a way the surrogate and supreme internally and independent externally. The nation is a group of people is a physiologically bound together with the sharing common joy and sorrow. The destinations between the state and the nation is spent under this condition. There are destination of the state and nations. The first is the nation and the state is the destination is the entities. A nation may be not be away a state. India was not a state before August 1947. A state may not be away to the nations. Austria-Hungary was a state but not a nation before the World War I. Because the heterogeneous is a people did not form a culturally homogeneous people. There is the most important here. Next, the state is a state because it is a survivant. Survivant, and there are nations are not be a state if they are not a survivant, and survivantry is the chiefly is a characteristic of a state. It is not a features of their nation. A nation become a nation state when the nation attain to the statehood.
The state is a political concept while the nation is a culture and psychologically body. I say the nation is a primary culture and only incidental political. And the what is a mean is that is a nation is not a political concept, it is only spiritual. And the next here D is a law bind the people together in a state and sentiments and the emotion bind to the people in a nation. The unity of the state is a way external. The unity of the nation is external. In a case of the state, unity is imposed. It is a comes from to above through the law. In the case of the nation, unity is come from within the through the emotion. And the next here, there is a element of force connected with the state. The state's law is a binding. There is a correcons and exercised by the state if it is authority is a decided. In the case of their nation, there is an element of precautions. And the next here, the elements of the state are defined as a population, fixed territory, government, and sovereignty. The elements of nation are not to be defined. Somewhere is common language help the constitution of a nation, and somewhere is the common race make a nation common religion. For example, was affected is making Pakistan as a nation. It was a common language in the case of the United States and the nation, whereas it is a common heritage and that made India is a nation. A state may be a larger than a nation. The format to the USSR had within the more than 100 nationality. Unconventionally, there a nation may be a larger than a state or nationality may be separate over to two states. The Koreans is a nationality is a separate over two states, North Korea and South Korea. हम जो आज बात करने जा रहे हैं राज्य और राष्ट्र के लिए, देखिए राज्य और राष्ट्र में जो है अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के अंदर जो है राज्य भी होगा, लेकिन कई जगह पे जो है स्टेट मिलके जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्र एक अर्थ है जो ऐतिहासिक रूप से संगठित लोगों का एक समुदाय है जो एक सामान्य भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचारों के कारण एक ही जो है संस्कृति में अभिव्यक्त होता है। यानी वलिष्ठ के अनुसार ये बात साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्र लोगों का वह समूह है जिसे विशेष भाषा, रीति रिवाज और सामान्य सभ्यता के कारण आपस में बंधे हुए सदैव रहते हैं, जो उनमें एकता की भावना से सदैव बांधता है। यानी हम जो हैं सभी के सभी एक राष्ट्र है और हमारे अंदर जो है राष्ट्रता की भावना होनी चाहिए। हमारा एक राष्ट्र है, हम राष्ट्र के सदस्य हैं और हमारे अंदर ये भावना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हो कि आप भी एक राष्ट्र के सदस्य हो और आप भी राष्ट्र हो। राष्ट्र संस्कृति के रूप में समरस सामाजिक एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों से है जो अपनी ऐतिहासिक संस्कृति विरासत के प्रति सजग है और इसे राजनीतिक रूप से जो है बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ ही यही होता है कि अपनी इतिहास, संस्कृति, विरासत को हर कोई व्यक्ति जो है सहेज कर रखना चाहता है, जो आने वाले जो है पीढ़ी उसको देख सके और समझ सके। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आंतरिक मामलों में जो है सर्वशक्तिमान और बाहरी मामले में सदैव स्वतंत्र भी होती है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से सदैव बंधे हुए रहते हैं, तो सामान्य रूप से सुख और दुख बांटते रहते हैं। यानी इंजॉय शेयर जो होता है आपस में जो है एक दूसरे से देते और लेते रहते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच विभिन्न प्रकार से भेद स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई है जो कि राज्य और राष्ट्र के बीच कुछ अंतर को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। देखिए राष्ट्र जो है सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। कहते हैं अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। ठीक है, भारत जो पहले एक राज्य नहीं था, उस समय अंग्रेजों की राज्य थी और उसने सारे देश को एक बना रखा था। राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता है। प्रथम विश्व से पहले ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एक राष्ट्र था, परंतु राष्ट्र नहीं भी था, क्योंकि यहाँ के जो है विजेता लोग संस्कृति रूप से जो है समृद्ध समूह का निर्माण नहीं करते थे। उसी प्रकार अगर हम अगली बात देखें तो कहते हैं राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। यानी देखा तो संप्रभु
इसके अंदर होता है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि वह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता का राज्य का जो है प्रमुख अंग माना जाता है। यह एक राष्ट्र का गुण भी होता है। आपने देखा होगा सर्वेगेंटी जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए प्रमुख गुण होती है, और यह राष्ट्र का एक गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राष्ट्र राज्य बन जाता है जब उसे राज्य की दर्जा मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई हमारे देश में भी जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है राज्य जो है अलग अलग राज्यों में कन्वर्ट हुआ है और उसको अलग राज्य की दर्जा दी जाती है। कहते हैं जो यहाँ पर अगर देखें आम आदमी पार्टी भी जो है दिल्ली को एक अलग राज्य की दर्जा मनवाने में लगा हुआ है, जो कि आज कुछ ही दिन पहले का ही न्यूज़ ये देखने को मिला था। राज्य राजनीतिक संकल्पना है, जबकि राष्ट्र एक जो है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें साफ बात बताई जा रही है कि देखिए राज्य एक का समूह हो सकता है और इसको विभक्त भी किया जा सकता है, यानी एक राज्य को दो राज्यों में बनाया भी जा सकता है। जैसे आपने बिहार को भी देखा होगा कि झारखंड में दो भागों में बट गया, हैदराबाद भी देखे होगा तेलंगाना में बट गया, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर उसको लद्दाख में दो भागों में इसको बांट दी गई। तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है। कहते हैं राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में सदैव बंधे होते हैं और जो है भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। यानी हम कहते हैं एक राष्ट्र के होते हैं तो राष्ट्र में जो भी प्रॉब्लम आती है हम सब मिलजुल के जो है इसको सामना भी करते हैं। कभी दुख में कैंडल जलाते हैं तो कभी दुख में जो है हम लोग जो है आंसू भी बहाते हैं, और कभी कभी सरकार के खिलाफ जो है हम धरना भी देने के तरपत्ते रहते हैं। अगर आप धरना ना भी तो फिर भी राजनीतिक नेता जो दूसरे पार्टी के होते हैं वो आपको उकसाकर जरूर इस कार्य के लिए संग्रह कर लेते हैं। राज्य की एकता सदैव बाहरी होती है, राष्ट्र का एकता अनंत होती है। राज्य सदन में एकता को आरोपित किया जाता है और यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के सदन में एकता संभावनाओं द्वारा सदैव उत्पन्न किया जा सकता है। उसके पश्चात है राज्य के एक और घटक है बल का। देखिए राज्य का एक और घटक जो है बल, कहते हैं बल ही राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा घटक माना जा सकता है। राज्य के नियम एक बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियम का पालन नहीं होता है तो वो दमनकारी शक्ति का प्रयोग भी करता है। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जा सकता है। बात अगर हम करें अगले पॉइंट को तो ये साफ शब्दों में होता है कि कहते हैं राज्य का घटक निश्चित होती है, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, यानी इज अ सबगेंटिस। कहते हैं राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते हैं। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण सामान्य भाषा के कारण होती है, कहीं पर सामान्य कुल के कारण होती है, सामान्य धर्म होने के कारण भी। जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया था क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का एक पार्ट था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भाषा के रूप में कि हम लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो धर्म के रिगार्डिंग जो है इसको अलग कर दिया गया। सामान्य भाषा का एक मुख्य कारण था अमेरिका के राष्ट्र बनने में, जिसमें सामान्य वितरण से भारत को एक राष्ट्र बनाया गया। बात करें अगर हम अंतिम पॉइंट का तो यही बात आती है कि राष्ट्र जो है राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। देखिए राज्य जो है एक राष्ट्र से भी बड़ा हो सकता है। अगर देखें हम पूर्व सोवियत संघ जैसे 100 से भी अधिक राष्ट्रता का समूह था। अगर आप यूएसएसआर के बारे में जानते भी होंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि यूएसएसआर जो था सबसे बड़ा जो है राज्य था, यानी राष्ट्रता का समूह था जिसमें बहुत बड़ा माना गया। लेकिन जैसे ही विखंडन हो गया सभी राज्य जो थे अलग अलग हो गए, अपना खुद ही जो है अपना सरकार बना लिया। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता दो से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रता दो राज्य उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में फैली हुई है। अगर कोरियन राष्ट्रता देखो आप तो ये जो है दो स्टेट में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो आपको पता ही होगा उत्तर कोरिया होता है और दूसरा जो होता है दक्षिण कोरिया में फैला हुआ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक था जिसमें हम बहुत कुछ जाने और समझे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिए। साथ में भूलना आपको ये बात भी नहीं है कि जितना हो सके इसको शेयर भी करना है, दूसरे बच्चे को पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प भी करना है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। सिर्फ व्हाट्सअप पे आपने क्या करना है, इसको स्टेटस के रूप में पेस्ट करना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अपने मोबाइल में जो है लिंक को जरूर इसको सेव कीजिए। इसके सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा, जिससे जो है आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे।